Guys, welcome back to my YouTube channel Civil Services and Aspiration. So guys, this is part 2 of class 9th polity chapter 3rd, which is electoral politics. So we are continuing from the topic where we have left in the previous video, means part 1. And if you want to see the part 1, I will provide the link in the I button and comment section on the down. So let's start with the topic from where we have left. So the topic where we have left in the last video is voters list. So in this topic we are going to study about the voters in India, means the people or the common people who give the votes to the candidates. So once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote. हमने अभी पहले पढ़ लिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे डिवाइड होती है, उनमें क्या होता है. अब हम वो चीज देखेंगे कि वो कौन डिसाइड करेगा कि कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता. सो दिस डिसीजन कैनॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे, और लास्ट डे तक भी ये किसी पर ये डिसीजन छोड़ा नहीं जाता. इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन. तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में जो वोटर्स की लिस्ट होती है, जो जो पर्सन वोट दे सकते हैं, उनके नेम्स, उनकी डिटेल्स पहले ही लिस्ट प्रिपेयर कर दी जाती है इलेक्शन से पहले और सबको वो मिल जाती है. And this list is officially called the electoral roll and is commonly known as voters list. और इस लिस्ट को electoral roll या फिर voters list कहा जाता है. And this is an important step, for it is linked to the first condition of a democratic election. और ये सबसे पहला स्टेप है किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन का, that everyone should get an equal opportunity to choose representative. यानी कि हर किसी को equal opportunity मिलनी चाहिए किसी भी person को choose करने के लिए as their representative. And voters play an important role in selecting the representatives. So earlier we read about the principle of universal adult franchise. We have read कि universal adult franchise क्या होता है, जो 18 years और उससे above people वोट कर सकते हैं in India. So in practice it means that everyone should have one vote and each vote have equal value. और ऐसा होता है कि हर किसी को एक सिंगल वोट देने का राइट है और हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होती है. नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीजन. और बिना कोई अच्छे खासे रीजन के किसी को भी रोका नहीं जा सकता वोट देने से. Different citizens differ from one another in many ways. अलग अलग citizens हर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा different होते हैं. Some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not educated or not educated at all. And some are kind, others are not so kind. But all of them are human beings with their own needs and views, and that is why all of them deserve to have equal say in decisions that affect them. और हर किसी को equal decision देने का right है. In our country, all the citizens aged 18 years and above can vote in an election, as I have told you, and every citizen has the right to vote regardless of his or her caste. मतलब अगर कोई पर्सन को राइट टू वोट है तो उसमें ये चीज़ नहीं देखी जाती कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है, मेल है या फीमेल है, इट डजंट मैटर एट ऑल. And some criminals and persons with unsound mind can be denied the right to vote, but only in rare situations. तो उन लोगों को राइट नहीं है जो या तो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं या फिर मेंटली अनसाउंड है. And it is the responsibility of the government to get the name of all the eligible voters put on the voters list. और ये गवर्नमेंट की, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी का नाम जो वोट देने के लायक है उनका नाम वोटर लिस्ट में हो. As new person attain voting age, names are added to the voters list. Name of those who moved out of a place or those who are dead are deleted. Means जो नए पर्सन्स आए हैं 18 ईयर या उससे अब जो जिन्हें राइट टू वोट दिया जाता है
उनका नाम ऐड किया जाता है, और जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं या फिर मर जाते हैं तो उनका नाम हटा दिया जाता है। अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 ईयर, और जो ये पूरी लिस्ट है वोटर लिस्ट, ये हर 5 साल में तैयार की जाती है। एंड दिस इज डन टू इंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट, और ऐसा इंश्योर किया जाता है कि अप टू डेट ही हो। In the last few years, a new system of election photo identity card has been introduced. और पिछले कुछ सालों से EPIC is a short form of election photo identity card. It has been introduced for voting, and the government has tried to give this card to every person on the voters list. The voters are required to carry this card when they go out to vote. और गवर्नमेंट ने ये डायरेक्शंस दी हैं कि जो भी कोई वोट देने जाएगा तो वो इस कार्ड को साथ लेकर जाएगा, सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, ताकि कोई दूसरे की जगह खुद वोट ना दे दे। बट द कार्ड इज नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग, लेकिन ऐसा जरूरी है कि ये कंपल्सरी हो फॉर वोटिंग। वोटर्स कैन ऑल्सो शो मैनी अदर प्रूफ फॉर आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस। जरूरी नहीं है कि ये वोटर आइडेंटिटी कार्ड ही दिखाएं, आप कोई भी राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस मीन्स आइडेंटिटी शो करनी है अपनी बस। नेक्स्ट इज नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। अब जो कैंडिडेट्स इलेक्शन फाइट करेंगे उनका नॉमिनेशन कैसे होगा? So we noted above that in a democratic election, people should have a real choice. लोगों के पास real choice होनी चाहिए. This happens only when there are almost no restriction on anyone to contest an election. This is what our system provide. Anyone who can be a voter can also become candidate in election. जो भी कोई पर्सन अगर वोटर है तो वो एलिजिबल है कि वो इलेक्शंस भी फाइट कर सकता है। The only difference is that in order to be a candidate, the minimum age is 25 year. लेकिन इलेक्शन फाइट करने की मिनिमम एज 25 years है, while it is the only 18 year for being a voter. लेकिन वोटर बनने के लिए सिर्फ 18 years की एज चाहिए होती है। There are some other restriction on criminal etc, but these apply in very extreme cases. और मतलब restriction होती है कई बार criminals पे, लेकिन बहुत ही rare situation में। Political parties nominate their candidates who get the party symbol and support. जो एक पॉलिटिकल पार्टी होते चाहे वो रीजनल हो या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो, वो अपने अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारती है वोटिंग इलेक्शन के लिए। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट, और जो पार्टी का नॉमिनेशन फिलअप किया जाता है उसे पार्टी टिकट बोला जाता है। एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो भी कंटेस्ट करेगा इलेक्शन उसे एक पूरा नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, और साथ के साथ कुछ सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट करनी होगी। Recently, a new system of declaration has been introduced on direction on the Supreme Court. ऐसी कुछ अब नई declaration introduce हुई हैं जो Supreme Court ने कहा है, such as serious criminal cases pending against the candidate, means the person who cannot contest the election. So the conditions are firstly serious criminal cases, बहुत ज़्यादा serial criminal cases pending में हो। Second is detail of the assets and liabilities of the candidate and his or her family. उसकी सारी डिटेल्स, कितनी कमाई है, कितनी वर्किंग है उसकी, सारा कितना असेट है, कितनी लाइबिलिटी है, सबका ब्यौरा होना चाहिए। Thirdly, it's the educational qualification of the candidate. And this information has to be made public, और ये information public होनी चाहिए। This provides an opportunity to the voters to make their decision on the basis of information provided by the candidates, और ये public में इसलिए कर देनी चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके the candidate they are going to vote. So moving forward, so this is a electoral roll या फिर voters list of 2018 state Mizoram, this type, that how many males, females are going to vote and who are the contestants or the candidates going to vote. So now let's see the election campaign.
So the main purpose of election is to give people a chance to choose the representative, the government and the policies they prefer. जो इलेक्शन का मेन पर्पस यही है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपनी गवर्नमेंट को, अपनी पॉलिसीज को खुद बना सके. Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative. उनके पास फ्री और ओपन डिस्कशन होना चाहिए कि कौन अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है एंड विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज अ गुड पॉलिसी, और कौन सी पार्टी अच्छी गवर्नमेंट बना सकती है. दिस इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन. और जो इलेक्शन कैंपेन होते हैं, रैलियां निकालती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, वो सब अपने फेवर में लोगों को करना चाहती हैं बाय गिविंग मेनी merits of their. So in our country, such campaigns take place for 2 weeks period between the announcement of the final list of candidate and the date of polling. यानी कि जिस दिन इलेक्शन होना है और जब तक कैंडिडेट्स फाइनल होते हैं तो 2 हफ्तों का टाइम दिया जाता है फॉर देयर कैंपेनिंग. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, address elections meetings and political parties mobilize their support. तो बहुत ज़्यादा पार्टीज रखी जाती हैं, मीटिंग्स की जाती हैं और रैलियां निकाली जाती हैं ताकि वो सपोर्ट गेन कर सके. This is also the period when newspaper and television news are full of election related stories and debate. आपने भी देखा होगा जब इलेक्शन का टाइम आता है तो टीवी में, न्यूज में, फोन में या न्यूज़पेपर्स में, सब में इलेक्शन से रिलेटेड ही चीजें रहती हैं. बट इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली. लेकिन जो ऐसा कहा जाता है कि 2 वीक्स तक होता है, ऐसा कुछ नहीं है. पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस. महीनों पहले से तैयारी करनी शुरू कर देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज. So in election campaign, political parties try to focus पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज. तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बड़े बड़े इश्यूज की तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं, वो अट्रैक्ट करना चाहती हैं पीपल को ताकि वो उनकी पार्टी को वोट दे. सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन. और उसके लिए सक्सेसफुल स्लोगन्स क्रिएट किए जाते ताकि उनकी तरफ अट्रैक्शन हो. सो द एग्जाम्पल्स आर, फर्स्टली द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, मीन्स रिमूव पॉवर्टी, इन द लोकसभा इलेक्शन 1971 में. The party promised to reorient all the policies of the government to remove the poverty from the country. तो इनका स्लोगन था गरीबी हटाओ, यानी कि लोगों को ध्यान केंद्रित किया कि अगर हम मेजॉरिटी में आते हैं तो हम पॉवर्टी कम कर देंगे. And second is Save Democracy. It was the slogan given by the Janata Party under the leadership of Jay Prakash Narayan in the Lok Sabha election 1977 में हुआ था. And the party promised to undo the excesses committed during emergency and restore civil liberties. यानी कि डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए इन्होंने अपना स्लोगन बनाया. The left front used the slogan of land to the tiller in the West Bengal Assembly election in 1977. And another is protect the self-respect of Telugus. It was the slogan used by N.T. Rama Rao, the leader of Telugu Desam party in Andhra Pradesh election in 1983 में. So in a democracy, it is best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaign the way they want to. तो इसीलिए डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स फ्री होते हैं इस चीज के लिए कि उन्हें किस तरीके की कैंपेन करनी है और वो क्या चाहते हैं. बट इट इज समटाइम नेसेसरी टू रेगुलेट campaign to ensure that every political party and candidate get a fair and equal chance to compete. लेकिन इस चीज का ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को कि जितनी भी पार्टीज है सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए compete करने के लिए. So according to our election law, no party or candidate. तो हमारे इलेक्शन लॉ के अनुसार
कोई भी कैंडिडेट ब्राइब नहीं दे सकता, ब्राइब कहते हैं रिश्वत को, रिश्वत नहीं दे सकता, और थ्रेटन वोटर्स को नहीं डरा सकता। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, किसी के कास्ट या रिलीजन को लेकर अपील नहीं कर सकता। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन, इलेक्शन कैंपेन के लिए सरकारी यंत्रों का यूज नहीं हो सकता। एंड स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन, और 10 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी और 10 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एन असेंबली इलेक्शन, यानी कि लोकसभा इलेक्शन में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे 25 लाख से ज्यादा यूज नहीं कर सकते मनी, और एक असेंबली इलेक्शन के लिए 10 लाख से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। इफ दे डू सो, अगर ये सारी चीजें ये करते हैं, देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर इलेक्टेड। और लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर बाद में पता चला कि आपने इन सारी चीजों का यूज किया है, तो इलेक्शन से वो उन्हें ओमिट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed the model code of conduct। तो इन्हीं चीज को रेगुलेट करने के लिए हमारे इंडिया में बनाया गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन। सो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार क्या है, यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू दिस, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, इसके अनुसार क्या क्या लोग नहीं कर सकते, कैंडिडेट नहीं कर सकते। इट इज द यूज ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, यानी कि इलेक्शन के लिए रिलीजियस प्लेस का यूज नहीं कर सकते। यूज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन, मतलब गवर्नमेंट की चीजें नहीं यूज कर सकते। And thirdly, once elections are announced, ministers shall not lay foundation stone of any project, take any big policy decision or make any promises for providing public facilities। जैसे ही डेट अनाउंस हो जाती है कि इस दिन इलेक्शन होगा, तो उसी दिन से कोई भी नई चीज की शुरुआत नहीं कर सकते। Now let's see the polling and counting of votes। अब हमने ये तो देख लिया कैंडिडेट कैसे सिलेक्ट होगा, क्या चीज, क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे कैंपेन के लिए। अब डे आता है पोलिंग का, और उसके बाद होती है वोटिंग ऑफ, उसके बाद होती है काउंटिंग ऑफ वोट्स। So the final stage of an election is the day when the voters cast or poll their vote। जो final stage होती है वो यही है कि voters अपना वोट डाल देते हैं। So that day is usually called the election day, और उस दिन को election day बोला जाता है। Every person whose name is on the voter list can go to a nearby polling booth situated usually in a local school or government office। तो इस दिन क्या होता है, जिन जिन लोगों का नेम वोटर लिस्ट में आता है वो किसी भी नियर बाय पोलिंग बूथ, यानी कि ज्यादातर तो लोकल स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस को ही बनाया जाता है पोलिंग बूथ। एंड वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, द इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई हर एंड पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर एंड अलाउ हर टू कास्ट अ वोट। और मार्क लगा देते हैं उनकी फिंगर पे ताकि वो दोबारा वोट ना दे सके, एंड और ना ही कोई उनके नाम पर दूसरे आके वोट दे सके। So an agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting take place in a fair way। तो हर एक पार्टी का एक एक एजेंट अंदर जाकर बैठ सकता है, उसे ये चीज, इस चीज का राइट है, और वो इंश्योर कर सकता है कि वोटिंग अच्छी तरीके से हो रही है या नहीं। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, so earlier the voters used to indicate whom they wanted to vote for by putting a stamp on a ballot paper। तो पहले के टाइम में ऐसा होता था कि जिसको भी वोट डालना है तो वोटर उसके आगे स्टैंप लगा देता बैलेट पेपर पे। अब बैलेट पेपर क्या होता है, a ballot paper is a sheet of paper on which the name of contesting candidates along with party names and symbols are listed। तो उस पे सारे पार्टी के नेम और कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते थे और साथ ही साथ सिंबल्स भी बने होते थे। लेकिन आज के टाइम में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि EVM are used to record votes। The machine shows the name of the candidate and the party symbol। उस पे भी पार्टी का कैंडिडेट का नाम और पार्टी का सिंबल होता है।
Independent candidates to have their own symbols allotted by the election commission. All the voters has to do is to press the button against the name of the candidate she wants to give her vote. तो यानी कि जिस भी वोटर को किसी भी कैंडिडेट को वोट देना है तो वो उसके नाम के आगे जो बटन है उसे प्रेस कर देगा. एंड वंस द पोलिंग इज ओवर ऑल द ईवीएम्स आर सील. जैसे ही पोलिंग खत्म हो जाती है जो जितनी भी ईवीएम मशीन्स हैं इन्हें सील कर दिया जाता है एंड टेक टू द सिक्योर प्लेस और बहुत ही सुरक्षित जगह पर रख दिया जाता है. अ फ्यू डेज लेटर ऑन अ फिक्स डेट, एक फिक्स डेट पे जो जितनी भी ईवीएम्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी से आई हैं उन्हें ओपन किया जाता है और ये चीज देखिए और वोट्स काउंट किए जाते हैं हर एक कैंडिडेट के. And the agent of all candidates are presented there to ensure that counting is done properly. काउंटिंग अच्छे से हो रही है उसके लिए भी एक एजेंट को अलाउड किया जाता है. The candidate who secured the highest number of votes from a constituency is declared elected. और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलती है उसे कैंडिडेट सिलेक्ट कर दिया जाता है. In a general election, usually the counting of votes in all the constituencies take place at the same time on the same day. जो जर्नल इलेक्शंस होते हैं उसमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो काउंटिंग होती है वोट्स की वो सेम डे पर और सेम टाइम पे होती है. टेलीविजन चैनल्स, रेडियो एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिस इवेंट और वो सारी लाइव रिपोर्ट दिखाते रहते हैं किसको कितनी वोट मिल रही है. विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर एंड इट बिकेम क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट. कि नेक्स्ट गवर्नमेंट कौन बनाएगा वो डिक्लेयर हो जाता है. Now moving forward towards the next topic which is what makes election in India democratic. तो अब तक हमने पढ़ लिया कि इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन वोट कर सकता है और काउंटिंग कैसे होती है, कैसे वोटिंग होती है. अब हम देखेंगे कि ऐसी क्या चीज है जो इंडिया के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाता है. सो वी हैव रेड अ लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन. हमने बहुत ज्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा है, सुना है. न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन रिपोर्ट्स ऑफन रेफर टू सच एलिगेशन. और टीवी और न्यूज़पेपर में ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं. सम ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग. अब उन रिपोर्ट्स में क्या क्या होता है कि इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट. जो वोटर लिस्ट तैयार की जाती है उसमें कई बार ऐसा होता है गलत नामों को चढ़ा दिया जाता है और जिन लोगों के नाम होने चाहिए उनका नाम नहीं आता. Second is misuse of government facilities and officials by the ruling party. जो ruling party है वो गलत misuse करती है गवर्नमेंट की फैसिलिटीज का. Thirdly, excessive use of money by rich candidate and big party. जो बड़ी बड़ी पार्टी होती है और काफी रिच पार्टी होती है वो ज्यादा मनी का यूज करती है लोगों को अपने हित में करने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए. And fourthly, it is the intimidation of voters and rigging on the polling day. और पोलिंग वाले दिन जो वोटर्स को इंटिमिडेट करने की कोशिश की जाती है by the political parties. So many of these reports are correct. काफी हद तक ये सारी चीजें सही हैं, ऐसा होता है रियलिटी में. And we feel unhappy when we read or see such report. और जब हम इस तरह की कोई भी रिपोर्ट रीड करते हैं या पढ़ते हैं तो बहुत ही बुरा फील होता है. बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट on such a scale so as to defeat their very purpose of election. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो election के purpose को defeat करता हो. This become clear if we ask a basic question. ये बहुत ही ज़्यादा clear हो जाएगा अगर हम question पूछते हैं कि can a party win an election and come to power not because it has popular support but through electoral malpractices. So क्या ऐसा हो सकता है कि एक पार्टी इलेक्शन जीत जाए और पावर में आ जाए लेकिन बिना किसी सपोर्ट के, पॉपुलर सपोर्ट के, लेकिन फॉल्स तरीके से बाय यूजिंग इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस. सो दिस इज द वाइटल क्वेश्चन. सो लेट अस स्टडी अबाउट ऑल दीज. फर्स्टली, it is the Independent Election Commission for conducting the elections in India. So one simple way of checking whether the elections are fair or not is to look at who conducts the election.
तो इसलिए देखा जाना चाहिए कि कौन इलेक्शन कंडक्ट कराता है, क्या वो गवर्नमेंट है या फिर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और या फिर रूलिंग पार्टी के अंदर है, उससे इन्फ्लुएंस है, उसके पास इनफ पावर है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन कर सके, उसके पास क्या सच में सारी पावर होती है इलेक्शन कंडक्ट कराने की। सो the answers to all these questions is quite positive for our country. And in our country, elections are conducted by independent and very powerful election commission. तो इंडिया में जो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है वो कमीशन है इलेक्शन कमीशन, and it enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoy. और उसी तरीके की इंडिपेंडेंस इसे मिलती है जैसे इंडिया में जुडिशरी को मिलती है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि CEC इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो चीफ होता है इलेक्शन कमीशन का उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और एक बार अपॉइंट होने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। उसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। Even if the ruling party of the government doesn't like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the election commissioner, chief election commissioner. So बहुत ही ज़्यादा impossible हो जाता है उसके बाद election commissioner को हटाना. So very few election commissions in the world have such wide ranging power. ऐसे बहुत ही ज्यादा कम इलेक्शन कमीशन है पूरे वर्ल्ड में जिनके पास ऐसी पावर है इंडिया जैसी, such as election commission take decision on every aspect of conduct and control of elections, from the announcement and election to the डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। यानी कि जब से अनाउंसमेंट होती है इलेक्शन के और डिक्लेरेशन के, सारी चीजों को कंडक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन। Second is it implements the code of conduct as I have told you earlier and punishes any candidate or party that violates it. और कोई भी पार्टी और कैंडिडेट जो उसे वायलेट करती है उसे पनिश किया जाता है। Thirdly, during the election period, the election commission can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of governmental powers to enhance its chance to win the election or to transfer some government official. और इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को गाइडलाइंस दे सकता है जो उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी। एंड फोर्थली, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी, कोई भी जो इलेक्शन ड्यूटी पे है गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल, और वो किसके कंट्रोल में काम करेगा? इलेक्शन कमीशन के। सो इन द लास्ट 25 ईयर और सो, या मतलब पिछले 25 या उससे ज्यादा सालों में, the election commission has begun to exercise all its power and even expand them. It is very common now for the election commission to reprimand the government and administration for their lapses. When election officials come to opinion that polling was not fair in some booth or even on entire constituency, they order a repoll. कई बार ऐसा होता है कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो रद्द कर दिए जाते हैं कि वो अच्छे से नहीं हो पाए, तो इलेक्शन कमीशन ऑर्डर देता है दोबारा से इलेक्शन करवाने के लिए। एंड द रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द EC does, बट दे हैव टू ओबे। कई बार रूलिंग पार्टी को नहीं पसंद आता जो इलेक्शन कमीशन करता है, लेकिन उन्हें उनकी बात माननी पड़ती है, इलेक्शन कमीशन की बात, क्योंकि इट वाज और इलेक्शन कमीशन की बात गवर्नमेंट को माननी पड़ती है। नाउ लेट्स सी द सेकंड टॉपिक व्हिच इज अ पॉपुलर पार्टिसिपेशन. So another way to check the quality of election process is to see whether people participate in it with enthusiasm. तो election process की quality को check करने के लिए ये देखा जाता है कि people कितने अच्छे से participation कर रहे हैं in the
इफ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री और फेयर, अगर इलेक्शन प्रोसेस फ्री और फेयर नहीं है तो पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज, तो लोग अपने आप ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. नाउ रीड दीज चार्ट्स एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट पार्टिसिपेशन इन इंडिया. तो जो ये चार्ट दिया हुआ है, वोटर्स टर्न आउट इन इंडिया एंड यूके, मतलब कितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया में और यूके में. So the first thing we get about that, people's participation in election is usually measured by voters turnout figure, means the turnout indicates the percent of eligible voters who actually cast their vote. इस चीज से निकाली जाती है परसेंटेज में कि कितने eligible voters ने वोट किया. Over the last 50 years the turnout in Europe and North America has declined. और पिछले 50 सालों में जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जो टर्न आउट निकला वो बहुत ही कम था. एंड इन इंडिया द टर्न आउट हैज आइदर रिमेन्ड स्टेबल और एक्चुअली गॉन अप. मतलब हमारे इंडिया में जो टर्न आउट है वो या तो सेम रहा है, कांस्टेंट रहा है, या फिर थोड़ा बढ़ा है, बट लेकिन नीचे नहीं गया. सेकेंडली, इन इंडिया द पुअर, illiterate and underprivileged people vote in large proportion as compared to rich and privileged sections. तो इंडिया में क्या होता है, जो गरीब, अनएजुकेटेड, इलिटरेट है, जिन्हें प्रिविलेजेस नहीं दिए जाते, वो ज्यादा वोट करते हैं एज कंपेयर टू रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन. एंड दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज. जैसा कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी में देखें तो इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक्स वोट मच लेस देन द रिच एंड वाइट पीपल. और वहां पर जो वेस्टर्न नेशंस हैं, कंट्रीज हैं, वहां पर पुअर और इलिटरेट लोग कम वोट करते हैं. Fourthly, the interest of the voter in election related activities has been increasing over the year. और पिछले काफी सालों से जो इंटरेस्ट है वोटर्स का वो बढ़ रहा है इलेक्शंस की तरफ. एंड ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शन मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन कैंपेन रिलेटिंग एक्टिविटीज. और 2004 में बहुत ज्यादा वोटर्स ने पार्टिसिपेशन किया था. More than half of the people identified themselves as being close to one or other political party. 1 out of every 7 voter is a member of a political party. हर 7वां वोटर एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है. Fourthly, those who participated in any election related activity in India. Now moving forward and let's see the acceptance of election outcome. So one final test of the free and fairness of the election has in its outcome itself. जो final test होता है वो यही होता है कि result कैसा निकलता है. If elections are not free or fair, the outcome always favor the powerful. अगर election free और fair तरीके से नहीं हुआ तो जो powerful है उसी की तरफ जाएगा election का outcome. In such a situation, the ruling party do not lose election. तो उस सिचुएशन में जो रूलिंग पार्टी होती है वो हारती नहीं है. एंड यूजली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ अ रिजिड इलेक्शन. और जो ऑपोजिशन में पार्टी होती है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करती इलेक्शन के रिजल्ट को. सो द व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ इंडियाज इलेक्शन. इंडिया इलेक्शन के जो आउटकम है वो क्या कहते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है routinely lose election in India both at the national and state level. In fact, in every 2 out of 3 election held in last 25 years, the ruling party lost. मतलब हर 3 में से 2 इलेक्शन में पिछले 25 सालों से जो रूलिंग पार्टी है वो हारती ही है. सेकेंड, इन द यूएस एन इनकम्बेंट और यानी कि सिटिंग होती है इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव की, वो रेयरली लूज एन इलेक्शन. जितने भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं, हारते हैं. बट इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलएज लूज इलेक्शंस. और जो आधे से ज्यादा इंडिया में एमपी और एमएलए हार जाते हैं. Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connection often lose election. और कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों ने कैंडिडेट्स में बहुत ज्यादा पैसा लगाया होता है और वोटर्स खरीद लिए होते हैं वो हार जाते हैं. And lastly, the bearing very few disputed election, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by defeated party.
So now let's see what are the challenges to free and fair election. ऑल दिस लीड टू आर सिंपल कंक्लूजन. एक सिंपल कंक्लूजन निकल के आता है कि इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर. जो इंडिया के इलेक्शन हैं वो फ्री होते हैं और फेयर होते हैं. द पार्टी दैट विंस एन इलेक्शन एंड फॉर्म गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स राइवल. जो पार्टी जीतती है वो इसलिए जीतती है और इसलिए सरकार बनाती है क्योंकि पीपल ने उन्हें चूज किया होता है. दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी. और जरूरी नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ये चीज फॉलो हो. बट अ फ्यू कैंडिडेट्स मे विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर एंड अनफेयर मीन्स. ऐसा हो सकता है कि कई सीटों पे अनफेयर मीन्स से भी सीट जीती गई हो. बट द ओवरऑल वर्डिक्ट यानी कि अगर हम एवरेज पे बात करें तो जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट popular preference, and there are very few exceptions to this rule in the last 60 years in our country. This is what makes Indian election democratic. Yet the picture looks different if we ask deeper question. अगर हम गहराई से कुछ क्वेश्चन पूछे तो रियलिटी अलग है, पिक्चर अलग तरीके से दिखती है. So are the people's preference based on real knowledge? क्या लोगों की real knowledge पर based है उनकी preference? Are the voters getting a real choice? Voters को क्या अच्छी choice मिल रही है? Is election really level playing field for everyone? And can an ordinary citizen hope to win election? क्या ordinary citizen कभी जीत सकता है election? So the arguments against this or the favor this are candidates and parties. So the arguments regarding these questions are firstly, candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do not enjoy a big and unfair advantage over smaller and independents. तो जो पार्टीज और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा पैसे लगाती है इलेक्शन में कि वो जीतेंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो. हाँ, लेकिन उन्हें थोड़ा बिग और अनफेयर एडवांटेज होता है स्मॉलर पार्टीज के ऊपर. सेकेंडली, इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री candidates with criminal connection have been able to push other out of the electoral race and to secure a ticket from major parties. और कुछ हिस्सों में कंट्री के ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट क्रिमिनल कनेक्शन से रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, उन्हें टिकट वो अच्छी बड़ी पार्टीज का टिकट ले लेते हैं. And another is some families tend to dominate political party. Tickets are distributed to relatives from their families. वो अपनी फैमिली में ही टिकट बांट देते हैं. Very often elections offer little choice to ordinary citizens, for both the major parties are quite similar to each other or both in policies and practices. And next point is smaller and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. और जितनी भी स्मॉलर पार्टीज होती हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें कई बार बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है बिगर पार्टीज पे. सो दीज चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया. ये जितने भी चैलेंजेस बताए जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया में होते हैं, बट ऑल्सो इन मैनी एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज. दीज डीपर इश्यूज आर अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर दोज हु बिलीव इन अ डेमोक्रेसी. दैट इज व्हाई सिटीजन्स, सोशल एक्टिविस्ट and the organization have been demanding reform in our electoral system. इसीलिए electoral system में reforms की डिमांड की जा रही है. और क्या अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं about the reforms in election system, so you can comment down below and give your suggestions. So that is it for this chapter. I hope guys you get to learn something about election system in India from this video. So till then, thank you for watching our video, and if you like it, please do like, share, subscribe, and you can also comment down your suggestion in the comment section below.